Hello guys, in our endeavor to cater to your UPSC Civil Services exam preparation for 2020, I am introducing another educator on this Chota Sa YouTube channel by me. So this educator is going to deal with the ancient history, medieval history and modern history portion of UPSC Civil Services exam preparation. So first of all, she would be dealing with your ancient history prelims previous year's questions. She would be discussing those questions, and in the coming video series by her, she would be recording a few videos, 20 to 30 videos on ancient history portion, Jainism, Buddhism, Rig Vedas, Upanishads, etc. And afterwards, she would also be taking up medieval history and then modern history section. She would be dealing with the excerpts of books like Bipin Chandra, India's Struggle for Independence, and Placid to Partition, and other books like NCERT, summary of NCERT here on this YouTube channel. And these videos under this video series target 2020 for history that will be dealt by her, and this will be freely accessible to all of you. And for the summary of the videos done by her, you can visit my blog www.jatinvarma.org. and for the courses that you can see on your screen, Integrated Indian Economy for 2020, Integrated Indian Polity and Governance for 2020, Current Affairs Quarterly Roundup, and GS Mains Paper 3 Ethics course, you can join Unacademy Plus under the subscription model. All these courses by me are available, and while applying for that, you can use the code JatinVarma71 to avail 10% discount right away at the stage of application itself. At the stage of subscription itself, you'd be given a discount of 10%. And for daily The Hindu News Analysis मैं हिंदी में इसी YouTube चैनल पे करूँगा, और इंग्लिश में अनअकैडमी पे आप फ्री इस डेली न्यूज़ एनालिसिस को पा सकते हैं. So thank you. I hope you would enjoy the sessions by this new educator on this new channel. Thank you. Hello friends. So आज के सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं that is going to be an important MCQ of ancient history. We'll be doing the two things. हम ancient history के important questions करेंगे, and उन questions के साथ आप ये सामने देख रहे हैं डिटेल explanation, उन questions के पीछे की background information जो रहती है उसके बारे में हम जानेंगे, right? So let's start up with this session, and I hope you will enjoy this session. So the very first question which you can see is, in post-Vedic times, society was clearly divided into four varnas: Brahmas, Kshatriyas, Vaishyas, Sudras. The two higher varnas, Brahmins and Kshatriyas, were placed in which of the following category? ठीक है. सो क्वेश्चन में हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड जानकारी तो हमें मिल ही गई है कि हमारा जो वैदिक पीरियड था दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्री एंड पोस्ट वैदिक. सो यहाँ पे बात हो रही है पोस्ट वैदिक पीरियड की. सो वहां पे कुछ सोसाइटीज थी, जो भी हमारा सिस्टम था दैट वाज सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द फोर बेसिक पार्ट्स. ठीक है, तो वो फोर बेसिक पार्ट्स में क्या थी, डिवाइडेड थी, एंड उनमें ये ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस क्या थे, उसके पार्ट थे. बट अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो दो हायर, अब इन चारों में भी हायर क्लासेस एंड लोअर क्लासेस में डिवाइड किया जाता था, एंड जो ब्राह्मण पार्ट रहता था एंड क्षत्रिय का पार्ट रहता था, इनको किस में कंसिडर किया जाता था, इनको हायर पोस्ट में कंसिडर किया जाता था, इनको हायर सोसाइटीज में माना जाता था. तो इन हायर सोसाइटीज में भी इनको किस कैटेगरी में ये फॉल करते थे, द्विजा की कैटेगरी में, सेथिस की कैटेगरी में, पुलत्यांश की कैटेगरी में, या किसी में भी नहीं. सो आवर आंसर इज ए, दैट इज द्विजा. व्हाट इज द द्विजा? द्विजा को हम एक तरह से अगर एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो कह सकते हैं इट इज अ सेक्रेड थ्रेड. ठीक है, इट इज अ सेक्रेड थ्रेड विच पीपल यूज टू वेयर. जो भी ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस के वंश के लोग होते थे तो वो क्या करते थे, एक सेक्रेड थ्रेड को वियर करते थे. तो वो जो ये सेक्रेड थ्रेड वियर करते थे वो कौन सी कैटेगरी में आ जाते थे, द्विजा. तो द्विजा का मतलब भी होता है एक तरह से रिचुअल्स वाला सेक्रेड थ्रेड. ठीक है, एंड माना जाता है कि जब वो ये सेक्रेड थ्रेड को वियर करते थे, एंड इस सेक्रेड थ्रेड को वियर करते वो क्या करते थे, वेदास को पढ़ते थे. ठीक है, एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पूछी जा सकती है कि जब वो वेदास को पढ़ते थे तो कौन सा ऐसा पार्ट है अमंग दिस फोर जिनको बार्ड आउट किया जाता था. तो जो शूद्रस है, स्पेशली जो वुमेन्स थी शूद्र की, दे वर बार्ड आउट ऑफ रीडिंग द वेदास, राइट. तो ये आपको ध्यान में रखना है.
सो आई गेस क्लियर हो गया है. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पार्ट. सो द कैटेगरी जिसमें जो हायर वर्णास थे, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास, दे वर प्लेस्ड इन द द्विजा. द्विजा इज नथिंग, अ वेरी सिंपल, अ सेक्रेड थ्रेड विच द पीपल यूज टू वियर ऑफ द हायर क्लासेस विच आर नॉर्मली नोन एज ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास. एंड ये एक सेक्रेड थ्रेड है जिससे पहन के वो रिचुअल्स या वेदास भी पढ़ते थे. आई होप बहुत ही इजी लैंग्वेज में क्लियर हो गया है सबको. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन. द अर्लीस्ट कॉइन्स बिलोंग्ड टू द 5th century BC and they are called punch marked coins that were circulated in which of the following states for the first time. Right? So यहां से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ग्रास्प करनी है ना नॉलेज. तो आपको ना अपना जब आप क्वेश्चन देखते हो, बी अवेयर दैट क्वेश्चंस आर द बेस्ट पार्ट टू गेट द इंफॉर्मेशंस. राइट? अब सपोज you have read out the topic. ठीक है, what if you have read out the topic? If you have read out the topic, that topic will give you the clarity of the concept, clarity of that particular subject, but questions are the part which enhances your knowledge, right? तो यहाँ पे बात हो रही है अर्लीस्ट कॉइन की. तो यहाँ से अगर आप अपने आप को अटेंटिव मानते हैं, then you would have learned the fact कि अर्लीस्ट कॉइन कौन सी सेंचुरी बीसी में स्टार्ट हुए थे. दैट स्टार्टेड इन द 5th century BC एंड उनको क्या बोला जाता है, उनको पंच मार्क्ड कॉइन्स बोला जाता था. ठीक है, अब ये पंच मार्क्ड कॉइन्स जो हैं ये कौन सी सिटीज या स्टेट्स में पहले सर्कुलेट हुए थे, ये हमारा आंसर है. सो बेसिकली हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट रहता है जिसमें हमारे पास उस टाइम पे जब ये 5th century BC की जो बात हो रही है पंच कॉइन्स की, तो उस टाइम पे कौसम्बी एक एरिया था इलाहाबाद के नज़दीक, राजगीर हो गया. देन ये सारे के सारे जो पार्ट्स थे ये भी वेल एस्टैब्लिश उस टाइम पे थे. बट फॉर द फर्स्ट टाइम अगर पूछा जा रहा है, देन जो कॉइन थे ये ईस्टर्न पार्ट, दैट इज बिहार एंड यूपी, ईस्टर्न बिहार एंड यूपी में ये सर्कुलेट हुए थे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. एंड ये जो कॉइन्स सर्कुलेट हुए थे, इन कॉइन्स की वजह से एक जो प्लस पॉइंट इसका हुआ था, क्या था, इन कॉइन्स की वजह से फैसिलिटेट हुआ था एक पार्ट, दैट वाज द पार्ट ऑफ ट्रेड एंड कमर्स. तो ट्रेड एंड कमर्स जो हुआ था दैट इंक्रीज्ड, एंड ट्रेड एंड कमर्स का जो ये पार्ट था ये एक एडिशनल पॉइंट लेके आया कौन सी सोसाइटी के लिए, यहां से भी क्वेश्चन उठ सकता है, दैट इज वैश्यास. ठीक है, तो अमंग द 4 सोसाइटीज जो ये सर्कुलेशन ऑफ कॉइन थे इसने इनहांस करा ट्रेड एंड कमर्स को. तो जब ट्रेड एंड कमर्स इनहांस हुआ तो इट ब्रॉट एन इकोनॉमिकली प्लस एंड एडवांटेज पॉइंट टू द सोसाइटी एंड दैट सोसाइटी वाज वैश्यास. क्लियर? आई होप अच्छे से क्लियर हो गया है. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज. सो which of the following sections of the Brahmanical society extended generous support to both Mahavira and Gautam Buddha in a view to improve their position in the society? क्वेश्चन ने ही आधी इंफॉर्मेशन दे दी है कि कोई ना कोई एक सोसाइटी है जिसने जो 2 हमारे एंशियंट टाइम के मेजर रिलीजियंस रहे हैं, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, कौन सी ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जिसने दोनों रिलीजियंस को क्या करा, सपोर्ट करा. सपोर्ट क्यों करा? टू इम्प्रूव देयर पोजिशंस इन द सोसाइटी. तो ऑब्वियसली कौन होगा, इसका आंसर तो अब सबको पता ही लग गया होगा बिकॉज अभी फर्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड से ही जिक्र होता आ रहा है. राइट? सो द आंसर इज सी, दैट इज वैश्यास. ठीक है, सो जो वैश्यास थे ना, दे आर पर्टिकुलरली रैंक्ड एज 3rd. ठीक है, जो यहाँ पे आप ये टर्म देख रहे हो ना, दिस इज ब्राह्मणिकल सोसाइटी, तो इस सोसाइटी में इनका जो रैंक है दैट इज रैंक्ड एज रैंक 3rd. सो फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर पोजिशन इन टू द सोसाइटी, जो भी वैश्यस के टर्म्स में लोग आते थे उन्होंने सोचा कि जो ये 2 रिलीजियंस हैं, ये जो ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रिलीजन थे ना, दिस वर लाइक द रिलीजन जो कि फॉर द पीपल थे. ठीक है, दिस वर फॉर द पीपल. सो उन्होंने क्या सोचा कि
अगर वो इस रिलीजन को सपोर्ट करेंगे सो दे कैन गेट द बेटर प्लेस इन टू द सोसाइटी इन विच दे आर लिविंग. सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? दैट इज वैश्यस, राइट? सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following religions of the Vedic period did not condemn the Varna system? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? कौन सा ऐसा रिलीजियन है हमारे पुराने टाइम का, वैदिक पीरियड का, जिसने वर्ना सिस्टम पे कोई भी रोक पाबंदी नहीं लगाई कि ये हमारे रिलीजियंस का पार्ट नहीं हो सकता है, राइट? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उस टाइम की जो सोसाइटी थी दैट वाज पैट्रियार्कली डिवाइडेड इनटू द 4 सेक्शंस. इन स्पाइट ऑफ दैट प्रॉपर डिवीजन, तो जो दो सोसाइटीज के लोग थे, अपर वाली दैट वाज ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस, वो तो हर एक पार्ट को एंड प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे, लेकिन जो वैश्यस एंड शूद्रास थे उनको कोई भी प्रिविलेजेस को नहीं एडवांटेज मिलता था. तो हम क्या कह सकते हैं? तो कौन सा ऐसा रिलीजन है? अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है, आइदर जैनिज्म और बुद्धिज्म और बोथ, है ना? सो क्वेश्चन मार्क कैन बी आस्क्ड एंड पर्सन कैन राइट A and B. So here is the mistake. So जो religion था वैदिक पीरियड का जिसने वर्ना सिस्टम को कंडेम नहीं करा था, that was Jainism. ठीक है, that was Jainism. Why? Because जो Jainism के मेन फाउंडर या Jainism के जो उस टाइम पे वी कैन से who was लॉर्ड महावीरा, उनका एक एक्सप्लेन करने का वे रिगार्डिंग टू द पीपल वो ये था कि जो पर्सन है, पर्सन नेवर बॉर्न इन अ हायर और अ लोअर सिस्टम. It is the society which divides the person into the lower and the higher part. But महावीर के अकॉर्डिंग, लॉर्ड महावीरा के अकॉर्डिंग, it was not the person कि जो हायर या लोअर सोसाइटी में बॉर्न अप होता है. ठीक है, सो जो वर्ना था दैट वॉज कंसिडर्ड एज लाइक कि जो डिवीजन करना था ना, डिफरेंस करना था, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा पाप था, उनके लिए बहुत बड़ा सिन था. ठीक है, सो उनका जो मेन, एक तरह से हम लगा सकते हैं कि जैनिज्म में जो महावीरा थे उनका जो मेन एम था दैट वॉज समथिंग बियॉन्ड एवरीथिंग, दैट इज अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम. एंड अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम, इसमें कौन सा अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम है? दिस इज अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम इन द टर्म्स ऑफ सोल. ठीक है, सोल को मुक्त कराने का जो प्रोसीजर रहता है वो इस पे बिलीव करते थे रेदर देन बिलीविंग ऑन द पार्ट कि कौन हायर सोसाइटी में से है एंड कौन लोअर सोसाइटी में से है. क्लियर? सो जैनिज्म, ध्यान रखना है, कंफ्यूजन में नहीं आना. एंड व्हाट वाज द मेजर मोटो ऑफ द जैनिज्म? इट वाज द अटेनमेंट ऑफ द फ्रीडम, राइट? सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आई होप जो भी आपके पार्ट्स हैं अभी तक के वो आपको बहुत अच्छे से एंड क्रिस्टल क्लियर फैक्ट्स की तरह पे क्लियर हो गए होंगे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द फेमाइन दैट टुक प्लेस इन मगधा आफ्टर 200 years after the death of Mahavira, and they developed differences among the practices of local Jaina followers. The Jaina followers who came back from southern states were called as. सारी की सारी स्टोरी ही क्वेश्चन में डिपिक्टेड है, राइट? एवरीथिंग इज बीइंग डिपिक्टेड इनटू द क्वेश्चन. जिसने कंसेप्ट या बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है उसने क्वेश्चन को देखते ही आंसर पे सीधा टिक लगा दिया होगा विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस बैकग्राउंड. इट वॉज सीन दैट कि एक ग्रेट फेमाइन हुआ था मगधा में 200 years. ये बात है आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा के डेथ के बाद में. ठीक है, एंड माना जाता है कि ये जो फेमाइन था इट लास्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 12 years. इट लास्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 12 years. एंड इस फेमाइन से बचने के लिए टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ जितने भी कुछ जैनास थे, देयर वर मैनी जैनास, उसमें से कुछ जैनास जो थे वो कहाँ पे चले गए? दे वेंट टू द सदर्न स्टेट. दे वेंट टू द सदर्न स्टेट. अब जो सदर्न स्टेट में वेंट कर गए थे दे वर अंडर द लीडरशिप ऑफ अ पर्सन. उसका क्या नाम है? उसका नाम है भद्राबाहु. सो अंडर द लीडरशिप ऑफ द भद्राबाहु कुछ जैनास जो थे वो सदर्न स्टेट्स की तरफ माइग्रेट कर गए थे एंड कुछ जो थे वो मगधा में ही रह गए थे. एंड जो जैना सिर्फ और सिर्फ मगधा में रह गए थे वो किसकी लीडरशिप के अंडर थे? दे वर अंडर द लीडरशिप ऑफ
स्थालाबाहु, ठीक है, दे वर अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थालाबाहु, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि कुछ जैनास थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस फेमाइन से चले गए सदर्न पार्ट्स में, एंड वो भद्राबाहु की लीडरशिप के अंडर गए, एंड कुछ जो वहीं पे रहे वो स्थालाबाहु की लीडरशिप के अंडर रहे, ठीक है। अब डिफरेंस क्यों किया जाता है, तो दोनों जैना है ना। सो द थिंग इज दिस कि माना ये जाता है, व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम द रिसोर्सेज, कि जो सदर्न पार्ट में भद्राबाहु की लीडरशिप के अंडर गए थे, जो जैनिज्म के मेन प्रिंसिपल एंड डॉक्ट्राइंस रहते हैं, ये जो सदर्न वाले जैनाज है ना, इन्होंने उसको प्रिंसिपल्स को मुश्किल टाइम में भी क्या करा, फॉलो किया, राइट। बट जो मगधा में स्टे बैक करे थे, उनको एक तरह से रिलैक्सेशन टाइप ऑफ पीरियड मिल गया था, ठीक है। So they were not strictly following up that rituals what was mentioned in their religion. तो जिन्होंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से जो भी उनके एक धर्म में रीति रिवाज लिखे होते हैं उनको अच्छे से फॉलो किया, तो वो थे सदर्न पार्ट वाले। तो उनको क्या बोला गया है, उनको दिगंबरा बोला गया है, एंड श्वेतांबरा किनको बोला गया, जो मगधा में रहे थे ना, जो स्थलबाहु की लीडरशिप के अंडर थे, उनको बोला गया श्वेतांबरा। आपने देखा होगा कि जब आप जैनिज्म पढ़ते हैं तो वो आगे जो जैनस होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक होते हैं दिगंबरास और एक होते हैं श्वेतांबरास, है ना। एंड इसको कभी कभी आप देखते होगे कई टेक्स्ट बुक्स में ये भी लिखा होता है कि लाइक दिगंबरास वर द पीपल हु यूज्ड टू वियर अप, लाइक जिसको व्हाइट क्लॉथ के साथ मेंशन किया जाता है, मींस डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट रिसोर्सेज के रिगार्डिंग अलग अलग चीजें मेंशन की जाती है, ठीक है। कुछ में क्लोथ्स के अकॉर्डिंग में इनका डिस्टिंग्विश किया जाता है, कुछ में किसी रिचुअल्स के अकॉर्डिंग में डिस्टिंग्विश किया जाता है, बट द एक्चुअल पार्ट वाज कि जिन्होंने अपने सारे रीति रिवाजों को अच्छे से फॉलो अप किया उनको दिगंबरास बोला जाता है, एंड द अदर्स वाज नोन एज श्वेतांबरा, राइट। तो ये था आपका मेजर पार्ट। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द अदर क्वेश्चन। सो हियर इट इज, you have to consider the following statements आपको दी गई हैं 4 वेदास के रिगार्डिंग, ठीक है। तो what we can see is the 3 statements with the 3 वेदास only, right? बट कितने टोटल वेदास होते हैं, that are the 4 वेदास, जिसके बारे में हमने अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं डिटेल में। So ऋग्वेदा is a collection of hymns, सामवेदा is a collection of song mostly taken from ऋग्वेदा, अथर्ववेदा is a collection of sacrificial formula। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई गेस, है ना। सबने इसका आंसर भी बता दिया होगा अपने आप को मेरे बोलने से पहले ही। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस आंसर। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज सी, दैट इज 1 and 3। यहाँ पे जो 2 है ना, दैट शुड बी 1, ठीक है। यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, दिस इज 1 and 3, राइट। चलो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जो ऋग्वेदा रहता है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ हिम्स, यहां पे सही बताया हुआ है। जो सामवेदा रहता है, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है, ये भी बिल्कुल सही है। जो भी कलेक्शन ऑफ सॉन्ग रहता है, मेलोडीज रहता है, दैट हैज बीन सामवेदा। नाउ एक होता है यजुर्वेद। जो यजुर्वेद होता है, दैट इज द कलेक्शन, और वी कैन से इज द वेद जिसमें सैक्रिफिशियल फॉर्मूला के बारे में बताया जाता है, यजुर्वेदा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अथर्ववेदा, जो स्पेल एंड चार्म। तो यहाँ पे आइदर तो आप यहाँ पे इस तरह से करिए, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, तो 1 इज करेक्ट एंड सामवेदा इज अ कलेक्शन ऑफ दिस, 2 इज करेक्ट, सो बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा जाता तो आप सेकंड काट देते एंड यू कुड हैव राइट थर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये पार्ट आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। वट अगर क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट होती विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो आपका आंसर रहता है सिर्फ थर्ड, ओनली 3, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो 1 ऋग्वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ हिम्स, ये भी सही है। सामवेदा इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, इट्स अ मेलोडीज एंड सॉन्ग्स, तो वो भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है, दिस इज ऑलरेडी करेक्ट, राइट। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज, आप देख सकते हैं आपके सामने कि एक कुछ ऑर्डर सा दिया हुआ है ना। तो विच ऑफ द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऋग्वेदिक इंडिया, ऋग्वेदिक टाइम पे कौन सा पॉलिटिकल ऑर्डर या स्ट्रक्चर चलता था, राइट। तो स्ट्रक्चर पे जाने से पहले मैं इनकी एक टर्म लिख देती हूँ। जो आप कुला देख रहे हैं, कुला जो है इट इज डिनोटेड टू द फैमिली। विलेज जो है इट इज डिनोटेड फॉर ग्रामा। देन विस जो है इट इज डिनोटेड टू
क्लैन, देन पीपल जो है इट इज डिनोटेड फॉर जन, एंड लास्ट कंट्री, तो कंट्री किसके लिए है, दिस इज फॉर राष्ट्र। ठीक है, आज के टाइम पे हम अपना पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं विच इज बीइंग डिवाइडेड इनटू वेरियस डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, तो ऋग्वेदिक के टाइम पे एक अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम चलता था, एक छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक, जैसे आज हम यहाँ पे भी देखते हैं, राइट। ठीक है, वी हैव ग्राम पंचायत एंड पंचायत सिस्टम इन द विलेजेस, देन अदर सिस्टम्स इन द सिटीज, एंड एक बड़े लेवल पे देखें तो हमारे एक पार्लियामेंट है, राइट। तो उसी तरह ऋग्वेदिक इंडिया में भी एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चल रहा था, वो किस तरह से चलता था। सो द आंसर इज बी। सबसे पहले फैमिली, देन ग्रामा, ग्रामा किसको बोलते हैं, दैट इज विलेज, देन विस जिसको क्लैन बोलते हैं, देन जना मतलब कि पीपल, देन लास्ट कंट्री। तो ये हमारा जो एक असेंडिंग ऑर्डर था ऋग्वेदिक के टाइम पीरियड के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वैली द अर्ली होमिनिड फॉसिल हैज बीन फाउंड, राइट। सो कौन सी वैली में फाउंड हुए थे। So we have three valleys. One is Indus, other is Narmada, third is Gangetic, and or all of the above. So the right answer is Narmada Valley. ठीक है, मोस्टली जो फॉसिल्स रहते थे they were seen in the areas of the Africa, China, Java, Southern Europe. ठीक है, एंड यहाँ पे जो नर्मदा वैली में होमिनिड फॉसिल क्लियर करा गया है ना, दिस वर द ओनली फॉसिल्स जो नर्मदा वैली में अवेलेबल या पाए गए थे। ठीक है, एंड इट इज कंसीडर्ड कि ये जो फॉसिल्स है दिस इज बीइंग इक्वल टू द होमो इरेक्टस, दिस इज बीइंग इक्वल टू द होमो इरेक्टस। व्हाट डज इट मीन्स कि ये जो फॉसिल्स हैं, जब अर्लियर स्टार्टिंग ऑफ द होमो सैपियंस हुआ था ना, इस उसके साथ में इसका एक तरह से कंपैरिजन किया गया है कि दिस इज एज ओल्ड एज और मोर देन ओल्ड एज द स्टार्टिंग फेज ऑफ द होमो सैपियंस। ठीक है, तो एक तरह से इसको इक्वालिटी में होमिनिड फॉसिल इज इक्वल्स टू द होमो इरेक्टस के इक्वालिटी में रिलेशन में इसको कंसिडर अप किया गया है। सो नर्मदा वैली में होमिनिड फॉसिल्स फॉर द फर्स्ट टाइम फाउंड हुए थे इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इसके अलावा जो बाकी फॉसिल्स थे दे हैव बीन फाउंड इन द अदर रीजन्स ऑफ अफ्रीका, चाइना एंड सदर्न यूरोप। So coming to the next part, not last, this is the next part. From which of the following Indian archaeological site the earliest stone tools have been found? कौन सी ऐसी इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन वाली साइट है जहाँ पे अर्लिएस्ट स्टोन टूल्स जो हैं मिले हैं। तो आपके पास सारी साइट्स के नाम दिए हुए हैं, लोथल, सिंध, बोरी, काबुल। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है दैट इज बोरी। बोरी जो है it is in Pune, which is the district of Maharashtra, and it is considered that जो it is considered to be 1.38 million year old. ठीक है, बोरी जो है it is considered कि जो बोरी है, ये जो पार्ट है बोरी का, ये लेटर दैन अफ्रीकन रीजन है। बोरी जो है इट्स आर्कियोलॉजिकल साइट विच इज मोर पुरानी है, किससे, अफ्रीकन रीजन से भी पुरानी है, बट ये कंटेम्प्ररी भी है। किसके कंटेम्प्ररी है, बट इट इज कंटेम्प्ररी टू द रेस्ट ऑफ एशियन कंट्रीज। तो जो रेस्ट ऑफ एशियन कंट्रीज हैं उसके ये क्या है, उसके ये बिल्कुल कंटेम्प्रेरी है, एंड लेटर किसके, अफ्रीकन रीजन से ये क्या है, लेटर है, राइट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो जो बहुत पुराना द अर्लियर स्टोन टूल्स जो था कौन से आर्कियोलॉजिकल साइट से मिला था, बोरी। बोरी कहाँ पे है, दिस इज इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। एंड इसके बारे में कब पता चला, इसके बारे में इट्स बीन थ्रू द रिसोर्सेज एंड द स्टडीज ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट कि 1.38 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, एंड दिस site is older or later than the African part but is contemporary to the rest of the Asian countries, right? So moving to the last part of today's session, that is, ये आप अपने screen पे question देखिए, which of the following pairs is correctly matched? So this is a simple task for you, this is an homework for you. What you have to do, आपको क्या करना है, इसका आंसर
कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना है, राइट? बिकॉज इफ यू विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन, आई विल बी कंसिडरिंग दैट यू आर एन एक्टिव एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग इन अ वेरी डेडिकेटिंग वे, राइट? सो ये आपका होमवर्क है, बहुत ही छोटा सा टास्क है जो आपको करना है. सो ध्यान से इस पार्ट को या ध्यान से इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है? एंड इसको नोट डाउन कर लीजिए. इसका जो भी आंसर रहेगा आपको कमेंट करके इस वीडियो के जो भी कमेंट सेक्शंस रहते हैं उसमें आपको बताना है. So here I end up with today's session. Hope you would have liked and enjoyed the session. So a very great thank you for giving all your precious time, and I hope मेरी जो information रही होगी आप लोगों के लिए काफ़ी beneficial and useful रही होगी. So stay tuned. See you soon in the next video with much more informative questions.